Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjad Ali and today I am going to deliver lecture number 17 for the course of Advances in Human Resource Development and Management. So before proceeding further, let me give you the review of the last lecture. In lecture number 16, we have discussed that why organization should go for health, safety and security measures. What is the benefit for this very organization to adopting such measures in order to promote health or in order to go for safety management and security management. Here, by adopting such measures, the organization would be able to curtail or reduce its workplace accidents and injuries. So organization would be having reduced its cost on worker compensation as well as its fine. Then we have defined what is health, safety and security. Health is the overall well-being of a particular individual in terms of its physical, mental and emotional well-being. Safety is providing, from the point of view of the employer, providing a workplace that is safe in terms of harming any physical injury to employees. Security, it is actually the area whereby employers are going to ensure the protection of its employees as well as physical facilities of the organization. Then we discuss certain issues with respect to safety management that we discussed. It can be done on 3 different levels. Organization level पे ये कर सकते हैं by designing jobs, by offering, by developing certain policies, measures, training दे सकते हैं. और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे कर सकते हैं कि वो अपने वर्क प्लेस को डिज़ाइन कर वर्किंग कंडीशंस को आइडेंटिफाई करें, इक्विपमेंट्स प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपर दें, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करें. और इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है बाय मेकिंग देम कॉन्शियस अबाउट टेकिंग सेफ्टी मेजर्स. और इंडिविजुअल लेवल पे हमने ये भी देखा था कि बाय ट्रेनिंग देम ऑन दिस सेफ्टी एरियाज एंड बाय एक्चुअली identify by actually starting incentives in terms of avoiding safety, in terms of avoiding certain accidents. Well, this was something about safety management. Then we discuss with respect to this health and what are the issues or concerns of employees at workplace. Health में हमने कहा उसके substance abuse के हो सकते हैं, problems के mental या emotional health के हो सकते हैं, anxiety, depression के disorders हो सकते हैं. ये ज़्यादा severe हो तो burnout हो जाते हैं employees को. हेल्थ के इश्यूज हैं, ये इश्यूज हमारे राइज होते हैं या वी फेस वी हैव दिस इशू बिकॉज ऑफ सर्टन प्रेशर्स ऑन आवर डिमांड्स विद इन आवर सोशल लाइफ, विद इन आवर वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, वर्क. तो इसमें जो डिमांड्स होती हैं वो हमारे रिफ्लेक्ट होती हैं इन आवर बिहेवियर. और वी हैव सर्टन प्रॉब्लम्स विद आवर फैमिली, विद रिलेटिव्स. उसकी वजह से हमारी ये जो चीज़ें हैं वो स्पिल ओवर होती हैं, प्रॉब्लम्स स्पिल ओवर होते हैं इनटू वर्क एनवायरनमेंट. Then we discuss certain measures that organization can take in order to promote the health of its employees. So it's a positive approach in order to induce employees to take certain measures in order to prevent or in order to react with certain employee problems. So, problems may be emotional, it may be certain psychological or mental, or it may be certain physical problem. So here we have discussed how organization can promote the health of its employees through offering certain wellness programs and offering certain employee assistance programs. Wellness program में ये precautionary measures हैं that in order to avoid certain problems that before these problems arise, organizations are actually orienting their employees to certain positive activities, certain healthy lifestyle. उसमें उसकी exercise का plan, diet का plan, cholesterol control, ये different activities हैं जिसके through वो persist काम कर सकता है for certain health related problem.
एम्प्लॉय असिस्टेंस एक्चुअली रिएक्शन है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया किसी भी एम्प्लॉय को, सो हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प दैट एम्प्लॉय टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम. सो ऑर्गेनाइजेशन कैन अरेंज डिफरेंट सेशन, कैन अरेंज वर्कशॉप्स, कैन कॉल फॉर अ साइकोलॉजिस्ट or psychiatrist or some other consultant in order to improve or remove such problems from employees. Well, then we have discussed security. Security is a protection of its employees and its organizational facilities. उसमें हमने various issues discuss किए हैं. Workplace violence, कि how we can identify a potential violent employee, उसकी क्या signs हैं, क्या उसके behaviors हैं, क्या उसके concerns हैं, वो हमने देखा. और फिर हम देखा डिफरेंट मेजर्स कैसे ले सकते हैं कि टीम्स बना दें, सिक्योरिटी की टीम्स बना दें, इसका इन्वेस्टिगेट करें, कोई अगर ऐसा इंसिडेंट उसे इन्वेस्टिगेट कर उसे प्रॉपर रिपोर्ट करें सो दैट वी कैन अवॉइड सच इंसिडेंट्स लेटर ऑन. Then we have discussed the issues of security management. Here we have said that there should be a complete security audit, vulnerability analysis होना चाहिए, सारे ins outs वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए. Security personnel है उसकी availability क्या है, employee theft कैसे हम देख सकते, computer fraud कैसे देख, सारी चीज़ें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. Now we are to start with our lecture 17. Here we are to discuss the rights and responsibilities issue, that what are employee rights and what are the responsibilities or duties. तो अगर आपके पास एक right है तो उसके exchange में आपके पास उसकी responsibility या duty है, तो जहाँ आपकी duties हैं वहाँ आपके rights भी हैं. अच्छा, what are the legal legislation, ठीक है ना, लीगल बेसिस क्या है फॉर दिस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन पाकिस्तान फ्रेमवर्क. और देन वी वुड बी डिस्कसिंग हाउ HR policies, procedures and rules can actually cover the area of employee rights and responsibilities, how these two are interrelated. Then we would be discussing how actually employee handbook can be used in order to control or in order to manage human resource of an organization. Then the moment we have developed certain employee books, how we would be actually communicating HR information to our employees, ठीक है ना, ये upward कैसे होगी, downward कैसे होगी, ये हम discuss करेंगे. Then finally we have to discuss employee discipline. Then we would be discussing certain approaches to actually introduce discipline among employees. So these were the certain objectives for the current lecture. Now starting with this lecture, here we are going to define what are rights and responsibilities. ये क्या हैं, ये कैसे आपस में interrelated है, इनमें issues क्या हैं. So starting with this rights, क्या है right? So rights actually belong to a person by law, nature or tradition. So certain rights are given or vested in individual by the provision of law. Law आपको allow करते हैं, nature आपको allow करती है, ठीक है ना, और tradition हमारी values, हमारा culture हमें कुछ ये rights देता है. लॉ क्या है जी, आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपके वर्किंग कंडीशन के, आपकी हायरिंग और फायरिंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, आपकी कौन कौन से बेनिफिट्स होने चाहिए, आपके सुपरविजन वर्किंग कंडीशंस का, ये सारी चीज़ें क्या है बाय लॉ डिफाइंड है. वी हैव एज एम्प्लॉइज वी हैव राइट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन बाय द एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ लॉ. अच्छा, नेचर फिर हमें सर्टन राइट्स देती है, हमारा राइट्स टू नॉट टू किल और हार्म एनी अदर बॉडी. तो ये बाय नेचर है, ये क्या लेके एक्सेप्टेड है, हर एक का राइट है कि जी यू हैव द राइट टू सेव योर लाइफ फ्रॉम एनी इंजरी और एनी डेथ. और ट्रेडिशंस देती हैं कि जी अगर कोई मेहमान आता है तो आपने उसे सर्व करना है, ठीक है. इस तरह कुछ वैल्यूज देती हैं हमें राइट्स, कुछ नेचर देती है और कुछ हमें लॉ राइट्स देते हैं. वेल, लीगल राइट्स मे और मे नॉट करस्पॉन्ड टू मॉरल राइट्स, ठीक है. तो ये जो हमारे ये राइट्स हैं ट्रेडिशन के, कल्चर के या जो नेचर के राइट्स हैं, ये क्या हम कहते हैं कि दे मे और मे नॉट करस्पॉन्ड टू लीगल राइट्स.
और जो लीगल राइट्स हैं दे मे आर मे नॉट correspond to moral rights. We cannot say that these are because of this legal right, और ये legal right क्या है because of this natural right or because of this traditional right. We cannot say like this because there is inconsistency, so there are certain problems. We cannot actually have a match between these legal rights and other the moral rights, because we cannot see a consistency, so there are problems at workplace. So how we can solve these problems, we would be discussing all of these issues in our current lecture. Then if we have rights, then certainly we are to take certain responsibilities. हमारे राइट्स हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ड्यूटीज हैं. जहाँ भी राइट है उसके करस्पॉन्डिंग आपकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हमें हर दफ़ा राइट्स याद रहते हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाती हैं. हमें ये राइट याद है कि मैं छोटा हूँ तो मेरा क्या राइट है, अगर मैं बड़ा हूँ तो मेरा क्या, लेकिन ये नहीं याद कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के छोटा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या और मेरे बड़ा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या. सो वी एक्चुअली फोकस ऑन राइट्स एंड वी फोरगो फॉर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेल दिस इज नॉट द वे वी आर टू बिहेव और वी आर टू एक्चुअली वी आर टू वर्क विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें हमें राइट्स का भी ख्याल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ख्याल, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस वुड be actually requiring us to perform on different activities or different projects, different teams में हमने require करना है. So if we are not actually seeing our responsibilities or duty, we won't be able to deliver up to the mark, up to the standard. जो required level उस पर हम नहीं कर सकते. So simply organization or supervisor would be having certain complaints from us. So this thing should be avoided. What are responsibilities जी? यहाँ देखें जी responsibilities क्या हैं. These are obligations to be accountable for actions. तो हमारे क्या हैं obligations हैं that we are to be held accountable for our actions. तो जो भी हमने किया उसके हम responsible हैं, उसके हम accountable हैं. We are to answerable for our actions. जो हमने किया है उसके हमने जवाब देना है. Well, employment is a reciprocal relationship. Both sides have rights and responsibilities. तो हमें क्या है, हम we are employed within our organizations. So there is a reciprocal relationship between for rights and responsibilities between employer and employees. तो अगर मेरे as employee rights हैं तो मेरे एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं. तो जो मेरा राइट है वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो ऑर्गेनाइजेशन का राइट है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखें कैसे है जी. इफ एन एम्प्लॉय हैज़ द राइट टू अ सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है ना, मेरा राइट है एज एम्प्लॉय कि आई शुड बी प्रोवाइडेड विद सेफ वर्किंग कंडीशन. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशन टू आवर एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज. अच्छा, अगर मेरा राइट है वर्क प्लेस सेफ वर्किंग कंडीशंस का, देन एम्प्लॉयर मस्ट हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस. अब ये क्या उसकी ऑब्लिगेशन हो गया. फिर दूसरी साइड पे देखें जी. इफ द एम्प्लॉयर हैज अ राइट टू एक्सपेक्ट अनइंटरप्टेड हाई क्वालिटी वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज. वो अब एम्प्लॉयर का राइट है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्क करें अनइंटरप्टेबली एंड हाई क्वालिटी. सो द वर्कर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का राइट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मेरे ऊपर आएगी. दैट वर्कर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ऑन द जॉब एंड मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. तो मैंने कंटिन्यूसली काम का अनइंटरप्टेबली काम करना है, क्योंकि जो मशीनरी चल रही है, जो असेंबली लाइन पे काम हो रहा है, जो प्लांट चल रहा है, वो स्टॉप नहीं हो सकता. स्टॉप होता तो उसमें कह लें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसमें लॉस होता है. तो अनइंटरप्टेबल ये हमने काम करना है. सो इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, आई शुड बी प्रेजेंट ऑन द जॉब एंड आई शुड बी मीटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सो ये क्या है जी, रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं एम्प्लॉय राइट्स के और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, और एम्प्लॉय राइट्स के एम्प्लॉयर राइट्स के एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का. ये रेसिप्रोकल रिलेशन है. जहाँ पे आपके राइट हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की राइट है वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
वेल यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि जी राइट्स जो हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन दीज आर एक्चुअली गवर्न आर प्रोमलगेटेड बाय सर्टन लॉ, बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स। सो द राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लॉज एंड स्टैट्यूट्स passed by federal, provincial and local governments are called statutory rights। तो जो rights हमें by law मिलते हैं उसे हम statutory rights कहते हैं। So before proceeding further, let us discuss some of the rights and responsibilities of employees and employers in Pakistani context। देखते हैं जी यहाँ पे हमारे पास कौन से laws हैं। So this is legislation in Pakistan with respect to rights and responsibilities of employees and employers, so that we may proper adjust ourselves in the working environment, and we should be knowing our rights and we should be knowing rights of employers, और फिर हमारी responsibility क्या है और responsibility employer की क्या है। अच्छा, फर्स्ट राइट है जी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1968, Industrial and Commercial Employment Ordinance। So it says that workmen should be provided the contract in writing। जो employees hire करने ना उसको contract, employment का contract मिलना चाहिए in writing। ये नहीं कि आपने कहा कल से आ जाना, ये गलत हो जाएगा। You should be actually, it's your right as employee to have a contract letter in writing, written आपके पास letter होना चाहिए जॉब का। Showing the terms that, अब इसकी क्या चीज़ें हैं कि इसमें होने चाहिए showing the terms and conditions of his service, उसमें terms and conditions होनी चाहिए। अच्छा, ये आपको कब मिला? At the time of hiring, promotion and transfer। तो जैसे ही आपकी designation change होती है, आपकी लोकेशन चेंज होती है, तो आपको दोबारा ये मिलना चाहिए राइट, ये लेटर, ठीक है, लॉ हमें कहता है। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग योर राइट। देन व्हाट डज दिस सेज, दिस requires that average rates paid to different categories of workers or work। जो एवरेज रेट है ना कि अगर एक बंदा एक क्लरिकल जॉब करता है उसका ये रेट है, एक बंदा इस मशीन को ऑपरेट करता है उसका ये रेट है, एक कह के इस डिपार्टमेंट काम करता है उसका रेट। तो जो रेट है ना एवरेज रेट, वेज रेट paid to different categories of workers should be posted on the notice boards। तो ये प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, हम इस मजदूर को इतना पैसा देते हैं, ठीक है, ये डिस्प्ले होना चाहिए। सो दिस इज द राइट ऑफ एम्प्लॉय टू सी दैट व्हाट आर देयर वेज रेट्स, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, डिस्प्ले करे इन वेज रेट्स को ऑन नोटिस बोर्ड। वेल फर्दर आर्टिकल्स 25 and 27 of the Constitution, they require that they actually prohibit, these two articles prohibit discrimination on the basis of race, ठीक है ना, religion, caste, sex, residence or place of birth। कि by the time organization is going to offer you employment should not be discriminating among applicants on the basis of race, कि आप किस रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, रिलीजन आपका क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, रेजिडेंस कहाँ से आप आए हैं, और प्लेस ऑफ बर्थ। इन किसी भी चीज़ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 25 एंड 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। वेल आर्टिकल 37E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। तो इसने इंश्योर करना है कि जी एम्प्लॉयज आर बीइंग प्रोवाइडेड विद जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, and it would also ensure that children and women are not employed in vocations unsuited to their age or sex। तो उनके लिए suitable vocations है, suitable occupations, suitable jobs हैं, वो उनको प्रोवाइड है। उनको किसी भी irresponsible या किसी भी unsuited position पे उनको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। एंड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर women in employment। और ये आर्टिकल कहता है कि women को who are in employment should be provided with maternity benefits। तो अब ये कि सेफ वर्किंग कंडीशंस आपका राइट है, मैटरनिटी एज women का मैटरनिटी जो आपकी लीव है वो राइट है, और जो
चिल्ड्रन है लेस देन द एज ऑफ 18 और 18 से कम और 14 से ज़्यादा, उनको आपने प्रॉपर जो उनके सूटेबल जॉब्स हैं उन पे प्लेस करना है। इसी तरह विमेन को कि उसको बहुत ज़्यादा हैजर्डस या बहुत ज़्यादा टफ वर्किंग कंडीशंस में या टफ पोजीशंस पे आपने नहीं रखना। ये डिफरेंट राइट्स शो कर रहे हैं। वेल, आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेज दैट द स्टेट शैल सिक्योर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। अब इसने सिक्योर करनी है वेल बीइंग ऑफ द पीपल irrespective of sex, caste, creed or race by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees। तो अब उसमें जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे क्लैश है बिटवीन द राइट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर, सो स्टेट शुड प्रोवाइड एन इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स, ठीक है, बिटवीन द पार्टीज। सो इट वुड बी इंश्योर्ड थ्रू unions, it would be ensured through certain court system procedures, जो last रूट्स के आपके rights हैं वो सारा जो procedure वो इसलिए कि you as employer and as employee should be having equitable adjustment of rights। आपके rights हैं ना हर जगह पे, आपके और employee के rights हैं, तो इसमें कैसे decide होगा who is right and who is wrong। so it should be ensured by state। तो स्टेट ने यूनियंस की इजाज़त दी हुई और कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, लेबर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जाके ये सारा प्रोसीजर हो सकता है। सो दिस स्लाइड एक्चुअली शोज दैट हाउ इन व्हाट सेंस यू हैव राइट्स विद इन एम्प्लॉयमेंट। देन वी आर टू डिस्कस HR पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। अच्छा, ये तो हमने कह दिया कि जी एम्प्लॉयर्स के राइट्स हैं, एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं, और इसमें इनकन्सिस्टेंसी होती है टाइम्स के जी आपके मॉरल राइट्स और लीगल राइट्स में, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि जी आपके विद इन पाकिस्तान जो आपका लॉ आपको क्या राइट देता है, ठीक है ना। अब इसमें जहाँ पे फिर हम कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो इंश्योर करेगी दैट देयर इज एन इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। तो ये एक तो यूनियंस और कोर्ट्स के थ्रू होता है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ने अपने environment में अपने within their framework what they would be doing। so actually organization would be enacting certain policies, HR policies उसने बनानी है, ठीक है ना, procedure बनाने और rules बनाने। so this we can say as a mechanism to deal with certain issues between employees and employers। so what are policies? policies क्या हैं जी? These are जनरल गाइडलाइंस। पॉलिसी क्या है? जनरल गाइडलाइंस दैट फोकस ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस। ये इनकी नेचर क्या जनरल होते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक नहीं करते, ये कहते हैं जनरल गाइड। वी वुड बी प्रोमोटिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वी वुड बी प्रमोटिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, वी वुड बी एनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। डिफरेंट पॉलिसीज जनरल उसकी होगी। we are to improve the quality of our product, we would be actually going to enhance our customer satisfaction। इस तरह different policies वो कहते हैं। अब ये when it comes into the domain of HR, these would be HR policies। अच्छा, ये पॉलिसी क्या कहती है? why we do it, हम ये काम क्यों करें, ठीक है। पॉलिसी हमें कहते हैं कि हमने ये काम क्यों करना है, क्यों हमने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ लेने हैं, क्यों हमने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट क्यों करनी है। सो पॉलिसी हमें बताती है कि जी डेवलपमेंट क्यों करनी है, हमने ओरिएंटेशन क्यों करनी है, हमने उसकी टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ उसकी सिलेक्शन क्यों करनी है। व्हाई वी डू इट, पॉलिसी वुड टेल अस। दीज आर जनरल इन नेचर, ठीक है ना, एंड पॉलिसी शुड बी व्यूड रेगुलरली। तो जो आपकी पॉलिसीज हैं वो ऑन रेगुलर बेसिस आपने उसको अपडेट करना है। तो जो आउटडेटेड हैं, जो पुरानी पॉलिसीज हैं, उनको आपने डिलीट करना है, जो नई पॉलिसीज को आपने इंक्लूड करना है, इनकलकेट करना है नई पॉलिसीज को, सो दैट देयर इज अ प्रॉपर मैच बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड बिटवीन द HR पॉलिसीज। ये ना एनवायरनमेंट चेंज हो जाए और एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स चेंज हो जाए, एम्प्लॉयज़ का वैल्यूज चेंज हो जाए, उसके ओपिनियंस चेंज हो और आपकी पॉलिसीज चेंज ना हो। आपकी पॉलिसीज को सारी जितनी भी चेंजेस टेक्नोलॉजी की, कल्चर की, सोसाइटी की, गवर्नमेंट की, जितनी भी चीज़, सारी चीज़ें आपकी चेंजेस आपकी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट कम्स दीज प्रोसीजर्स। तो ये क्या है जी? दीज आर मोर स्पेसिफिक टू द सिचुएशन,
ठीक है ना, ये जनरल तो है लेकिन ये उससे ज्यादा हैं। दीज प्रोसीजर्स प्रोवाइड फॉर कस्टमरी मेथड्स ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटीज, के एक्टिविटीज को कैसे हैंडल करना है वो बताएगी आप ये करना कैसे। तो ये टेल्स हाउ वी डू इट, हाउ वी डू इट, एक चीज को कैसे करना, प्रोसीजर। सिलेक्शन क्या क्या प्रोसीजर है, आपके एम्प्लॉय डिसिप्लिन क्या क्या प्रोसीजर है, आपके फायरिंग का क्या प्रोसीजर है, ले ऑफ का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर्स। ट्रेनिंग में भी जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है, हर चीज का प्रोसीजर। पहले आप ये करें, फिर ये करें, फिर आपकी प्रमोशन कैसे होगी, पहले आप ये कोर्स करेंगे, आपकी इतनी एज, इतनी सर्विस होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन, देन यू आर एलिजिबल टू बी प्रमोटेड। तो हर एक की पॉलिसी के कुछ प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, वो गाइड करते हैं कि हाउ वी डू इट, अब इस चीज को करना कैसे है। these आर स्पेसिफिक टू द सिचुएशन, जरा उससे जनरल से हट जाते हैं, जरा स्पेसिफिक हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये करेंगे, ये चीज है तो ये करेंगे, ये पर्टिकुलर एक कॉन्टेक्स्ट में प्रोसीजर वो बना दी जाते हैं, गाइडलाइंस हैं ये प्रोसीजर एक्चुअली। रूल्स ये फर्दर नैरो डाउन हो जाते हैं जी रूल्स। दीज आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस दैट रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये और ज्यादा उनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दे एक्चुअली शो द लिमिट्स ऑन व्हाट वी डू, तो ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये रूल्स शो करते हैं कि आप कितना आपको रेज मिल सकता है, कितना आपको बोनस मिल सकता है, कितनी आपकी प्रमोशन हो सकती है, कहाँ आप सिलेक्ट हो सकते, कहाँ आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, वो रूल्स बताएंगे व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल, द लिमिट्स ऑन व्हाट वी डू। पॉलिसीज क्या हैं कि जी वाई वी डू इट, हम क्यों प्रमोट करें टैलेंट को, हम इंटरनली क्यों प्रमोट करें लोगों को, पॉलिसीज बताती है, सो दैट वी कैन हैव एन एनर्जी और मोटिवेशन विद इन एम्प्लॉय, सो वी आर टू प्रमोट इंटरनली। अच्छा, प्रोसीजर हाउ वी डू इट, कि आपकी इतनी सर्विस हो, आपके इस डिपार्टमेंट में सर्विस, देन वी वुड बी प्रमोटिंग यू। और रूल्स वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस देते, अगर आपने ये चीज नहीं की ये नहीं हुआ, ये चीज नहीं की ये नहीं हुआ, इतना ये पीरियड हो गया तो ये हो जाए, इस तरह रूल्स फिर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, दीज शो लिमिटेशंस। Well, rules are similar to procedure as they guide action and typically allow no discretion in their application. तो ये बाइंडिंग है, ज्यादा बाइंडिंग है। प्रोसीजर में तो फिर वो दिखाता ना कि ये स्टेप्स करने हैं, इसमें ये कहता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लिमिटेशन शो करते हैं, व्हाट वी कैन नॉट डू। रूल्स रिफ्लेक्ट अ मैनेजमेंट डिसीजन दैट एक्शन बी टेकन और नॉट टेकन इन अ गिवन सिचुएशन। वो रूल बताएगा कि अगर अब ये एक करंट एम्प्लॉय है, उसके इतना एक्सपीरियंस है, ये कोर्स है, इतना उसके इस डिपार्टमेंट स्टे है, इतना इस डिपार्टमेंट स्टे है, ये उसकी एजुकेशन है, सो वेदर वी आर टू प्रमोट दिस पर्सन टू नेक्स्ट लेवल और नॉट। तो रूल्स हमें बताएंगे, प्रोसीजर तो बता देगा किस तरह करना, लेकिन रूल हमें बताएगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑन द गिवन सर्कमस्टांसेस शुड बी प्रमोटेड और नॉट। सो दीज वुड बी एक्चुअली डिक्टेटेड बाय रूल्स। Now this slide shows a typical division of HR responsibilities with respect to policies and rules. So HR unit में जो managers हैं वो क्या करेंगे, और इस साइड पे क्या जो line managers हैं उनकी क्या responsibilities हैं, ये policies और rules के perspective में ये क्या करेंगे। Well, HR unit designs formal mechanisms for coordinating HR policies. तो जो HR policy को coordinate करने ना उसके मैकेनिज्म ये HR डिपार्टमेंट बनाएगा। इट प्रोवाइड्स एडवाइस इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड HR पॉलिसीज। तो HR पॉलिसीज की डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डेवलपमेंट में ये अपनी एडवाइस देता है, पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस में बनाने में। देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ HR पॉलिसीज, उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, HR पॉलिसी प्रोसीजर एंड रूल्स की एप्लीकेशन क्या होगी। इट एक्सप्लेन्स HR रूल्स टू मैनेजर्स, तो ये एक्सप्लेन भी करते हैं लाइन मैनेजर्स को रूल। दे ट्रेन मैनेजर्स टू एडमिनिस्टर पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड रूल, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू मैनेज। लाइन मैनेजर्स क्या करते हैं जी, दे हेल्प इन डेवलपिंग HR पॉलिसीज एंड रूल, तो ये HR पॉलिसीज और रूल्स को डेवलप करने में HR यूनिट को, HR डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। वेल, दे रिव्यू पॉलिसीज एंड रूल्स विद ऑल एम्प्लॉइज, वो रिव्यू करते हैं जी
इन पॉलिसीज को और रूल्स को, जैसे हमने स्टार्ट में कहा दीज शुड बी रिव्यूड रेगुलरली। वेल दे अप्लाई पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, ये अप्लाई करते हैं फॉर सर्टन एक्शन, किसी की प्रमोशन, किसी की फायरिंग है, किसी की लीव एप्लीकेशन, जो भी है उसको अप्लाई करेंगे। वेल दे एक्सप्लेन रूल्स एंड पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉइज, तो जो भी एक मैनेजर के अंडर एम्प्लॉइज हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे कि जी ये रूल क्या कहता है और कहाँ पे अप्लाई होता है। Well, these people would give feedback on effectiveness of policies and rules, to how much extent these are effective and where these rules and regulations are ineffective. Well, this was the division of HR responsibilities between line managers and HR unit with respect to policies and procedures and rules. Moving further, now we are to discuss एम्प्लॉई हैंडबुक्स। ये क्या चीज़ें हैंडबुक्स जी? अच्छा, एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पार्टीज बी रिजॉल्व सो दैट एम्प्लॉइज रिसीव एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। एम्प्लॉइज के दरमियान में कोई मसला आ जाता है, या एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का मसला है, एम्प्लॉय और बॉस का मसला है, दो कलीग का मसला है, शुड बी ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, शुड बी रिजॉल्व अप्रोप्रिएटली सो दैट they see appropriate treatment. अब ये कैसे होगा? by developing employee handbooks, कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। employee handbooks हमने डेवलप करने in order to resolve conflicts between two entities or parties. अच्छा, well designed HR policies जो है, ठीक है ना, ये HR हैंडबुक में, एम्प्लॉई हैंडबुक में क्या HR पॉलिसीज रूल्स वगैरह आएंगे, तो ये हमें करनी है। और वेल डिज़ाइन जो HR पॉलिसीज हैं वो कैसी होती हैं? ये जी कंसिस्टेंट हैं, जो HR पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट, इसमें कहीं पे मिसमैच या एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। डिफरेंट पॉलिसीज में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो, एक पॉलिसी कहती है कि हमने टैलेंटेड को रखना है, एक कहती है जो सबसे कम सैलरी पर आ रहा है हमने उससे रखना है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें सारी नेसेसरी चीज़ें आनी चाहिए। It should cover each and every area. Nothing should be left. Then each and every policy should be applicable. Within ये ना हो कि हम policies हों हम apply ना कर सकें। Understandable हो, easy to understand हो, बहुत ज़्यादा difficult complex ना हो policies आपकी, reasonable हो कि why you have developed this policy, it should have certain reason, rationale. अच्छा, these policies should be distributed होनी चाहिए और क्लियरली कम्युनिकेटेड, इनको आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन नो अबाउट पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, एम्प्लॉय हैंडबुक्स जो हमने डेवलप करनी है वो कैसी होनी चाहिए? जो ये हैंडबुक दे गिव एम्प्लॉयज अ रेफरेंस सोर्स फॉर कंपनी पॉलिसीज एंड रूल्स। रेफरेंस सोर्स, अब उसने कहाँ से देखना है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हम किसी जगह से तलाश करते हैं ना, तो कहाँ से देखना है पॉलिसीज को? वो हैंडबुक से, एम्प्लॉय हैंडबुक से देखना है उसने। सो इट्स अ मेन सोर्स, इट्स अ रिलायबल सोर्स फॉर सीइंग कंपनी पॉलिसीज एंड रूल्स। Well, employee handbooks can be a positive tool for effective management of human resources. So, by actually developing and disseminating these employee handbooks, it can be used as a positive tool to effective human resource management. कि खुद उनको पता है वो accordingly उनके behaviors shape होते जाते हैं, उसी तरह के काम करते हैं जो उनकी उनको provision होती है। Well, these handbooks can be prepared very easily by using available computer software. तो ये आराम से टाइप करें और उसकी एक PDF फाइल बना लें, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। ऑनलाइन बना लें आप कंप्यूटर पे और इससे सबको मेल कर दें, हार्ड की आपको ज़रूरत ही नहीं है। देन एम्प्लॉय हैंडबुक्स में फर्स्ट डेवलप साउंड HR पॉलिसीज एंड एम्प्लॉय हैंडबुक्स टू कम्युनिकेट देम, एंड देन आप पहले पॉलिसीज बनाएं और उन पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करें हैंडबुक्स में और एम्प्लॉय हैंडबुक में। और अब आपने बना ली हैंडबुक तो इस तरह नहीं कि फौरन उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जस्ट हैव डन दीज 3 स्टेप्स। ये 3 चीज़ें करें, उसके लिए लीगल रिव्यू करें लैंग्वेज का, उसकी रीडेबिलिटी चेक करें और उसका यूज चेक करें। सो स्टार्टिंग विद दिस लीगल रिव्यू ऑफ लैंग्वेज, आपने देखना है कि जी
लीगल एक्सपर्ट्स जो लॉयर्स होते हैं उनको इसका कले के रीडिंग करवाएं कि जो इसमें कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है, कोई चीज़ कले कि किसी की इंटरप्रिटेशन गलत वे तो में तो नहीं हो रही, या कोई चीज़ें अनइंटेंडेड तो नहीं चलेंगी उसमें. सो एक्चुअली यू आर टू एलिमिनेट कंट्रोवर्शियल फ्रेजेस इन वर्डिंग. जो कंट्रोवर्शियल फ्रेजेस हैं वो रिमूव कर दें. अब इसमें हैंडबुक में क्या है, सर्टन डिस्क्लेमर्स होने चाहिए, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट क्लेम दिस थिंग, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ राइट टू रिव्यू और चेंज पॉलिसी एट एनी टाइम, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ राइट टू डिलीट एनी राइट और एनी पॉलिसी एट एनी टाइम. इस तरह के कुछ डिस्क्लेमर्स होने चाहिए. एंड दे शुड बी शोन एट appropriate positions in the handbook, ठीक है ना. डिस्क्लेमर एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पेज पे डिस्क्लेमर हो, या उसके बैक पेज का डिस्क्लेमर हो कि जी दिस डज नॉट एंटाइटल्स एम्प्लॉयज टू दीज राइट्स, ठीक है ना. आप कहते हैं कि ये हमारे डोमेन में नहीं आता. वेल, डिस्क्लेमर शुड नॉट बी ओवर यूज. ये ना हो कि आपके बहुत सारे डिस्क्लेमर हो फिर आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, फिर ये क्या कहती है. उसमें बहुत एक दो एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये ना उसमें ज़्यादा एक्सेप्शंस हों. वेल, दीज हैंडबुक शुड बी केप्ट करंट. उसके जो कंटेंट्स हैं, जो उसकी पॉलिसीज हैं, वो करंट अपडेटेड होनी चाहिए. उसे आपने कंटिन्यूसली चेक करना है, रिव्यू करना है और चेंज करना है इनके कंटेंट्स को. अच्छा, उसकी एम्प्लॉय हैंडबुक की रीडेबिलिटी चेक करें जी. रीडेबिलिटी क्या है? एडजस्ट रीडिंग लेवल ऑफ द हैंडबुक फॉर इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ एम्प्लॉयज. आपकी ऑडियंस क्या है, वो वर्कर्स हैं. आपने लिखी हुई इस तरह है कि जी लॉयर ही पढ़ सकता है, ठीक है ना. उसको ज़रा आसान लिखें सो दैट एम्प्लॉयज कुड अंडरस्टैंड दिस. उसको थोड़ा सा आसान करें. वेल, आप इसे कैसे कर सकते हैं? यू कैन टेस्ट द रीडेबिलिटी ऑफ द हैंडबुक ऑन अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर इट इज़ पब्लिश. तो उनको पब्लिश करने से पहले चेक कर लें, कपल ऑफ एक सैंपल लें एम्प्लॉयज का, उनको कहें आप ये पढ़ें और देखें कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग इससे बनती है. सो इट कैन बी ए चेक ऑन द रीडेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय हैंडबुक. देन इसका यूज़, ये यूज़ कैसे होगी? सो यू आर टू कम्युनिकेट एंड डिस्कस दिस हैंडबुक. एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करें और डिस्कस करें, हैंडबुक को डिस्कस करें. देन डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉय हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिकली, वो ईमेल के थ्रू सबको भिजवा दें. And you have to notify all employees of the changes in the handbook. So if you are going to change any section, any policy rule at any time, then do notify this change to all employees so that they come to know that what is the change and how this change is going to affect their behavior or their work. Employee handbooks हो गई जी. Then we are to, once we have developed these handbooks, now we are to communicate HR इंफॉर्मेशन. तो हमारे पास ये हैंडबुक्स हैं या कोई भी इस तरह चेंजेस है, कोई हमारी पॉलिसी नहीं आ गई है, कोई भी चीज़ है, उसको हमने कैसे कम्युनिकेट करना है. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग HR इंफॉर्मेशन. ये कौन से हमारे पास ऑप्शन है? वेल, जो कम्युनिकेशन HR इंफॉर्मेशन, इट फोकसेस ऑन रिसीट्स एंड डिसेमिनेशन ऑफ HR डेटा एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें जो आपके पास इंफॉर्मेशन है एज एम्प्लॉयर, वो आपने डिसेमिनेट करनी है, और जो एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर कंसर्न, देयर नीड्स, देयर क्वेश्चन, देयर क्यूरीज, यू आर टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन. सो इट्स अ टू वे, ठीक है ना. एम्प्लॉयर ने इंफॉर्मेशन देनी भी है और एम्प्लॉयर ने इंफॉर्मेशन लेनी भी है, ठीक है ना. ये एम्प्लॉयर और ये क्या है जी, एम्प्लॉय. टू वे कम्युनिकेशन होगी. अच्छा, इसे हम कहते हैं, here we can see that there are two types of downward communication and upward communication. Downward communication actually inform employees about what is and will be happening in the organization. जो टॉप मैनेजमेंट है, जो पॉलिसीज बनाती हैं, उसने इन्फॉर्म करना है एम्प्लॉयज को about what is and will be happening in the organization, कि क्या क्या हो रहा है, क्या पॉलिसीज बन रही हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं, स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कैसे चेंज, टीम्स कैसे बन रही हैं, आपकी वैल्यूएशन कैसे होगी, आपको इंसेंटिव्स कैसे मिलेंगे, बेनिफिट्स में क्या चेंज है. सारी चीज़ें जो भी हो रहा है, मैनेजमेंट वुड बी एक्चुअली पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू द डाउनवर्ड टू द एम्प्लॉयज.
अच्छा, in this way top management would be actually showing their expectations and goals, what top management expectation and goals are. ठीक है ना. तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ये दो चीज़ें हो रही हैं, एक पॉलिसीज कैसे कैसे बनी, चेंजेस कैसे कैसे आ रही हैं, और दूसरा उसकी एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स क्या हैं वो नीचे ट्रांसलेट हो रहे हैं डाउनवर्ड. Well, another type of communication is upward communication. Well, it enables managers to know about the ideas, ठीक है ना, concerns and information needs of employees. So, what are the ideas, suggestions from employees regarding any of the work activity? उनके concerns क्या हैं? What type of changes they need? ठीक है ना, क्या उनको फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, क्या उनको पेंशन चाहिए, क्या उनके नीड्स क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, ये हमने देखना है. अपवर्ड कम्युनिकेशन हमें ये चीज़ पता चलेगी. और इंफॉर्मेशन नीड्स के उनके क्वेश्चंस क्या हैं, क्यूरीज क्या हैं, हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस इंफॉर्मेशन. अब ये क्या जी, हाउ टू कम्युनिकेट HR इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. अब इसके डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट इसके ऑप्शंस हैं टू कम्युनिकेट दिस HR इंफॉर्मेशन. वेल, इसके हम कहते हैं 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर कम्युनिकेटिंग HR इंफॉर्मेशन. हियर वी कैन सी दैट HR पब्लिकेशन एंड मीडिया कैन बी वन ऑफ द मोड. HR पब्लिकेशन एंड मीडिया के थ्रू हम HR इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं. वेल, दिस इज अ वे वेयर वी कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना, कंपनी मैगजीन्स, ऑर्गेनाइजेशनल न्यूज़लेटर्स, वीडियो टेप्स और इंटरनेट पोस्टिंग के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं टू एम्प्लॉयज. HR पब्लिकेशंस एंड मीडिया, न्यूज़पेपर कोई चीज़ न्यूज़पेपर में दिलवा दें, ठीक है ना, कि ये हमारी जॉब ओपनिंग्स हैं. कंपनी मैगजीन में कोई चीज़ आ जाए, ये हमारी नई वर्किंग कंडीशंस है, नए हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, वो आ जाए. ऑर्गेनाइजेशनल न्यूज़लेटर में आ जाए कि दिस पर्सन हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम दिस लेवल टू दिस. ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़लेटर एक्चुअली इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट होता है. जितनी भी चेंजेस, जो इनिशिएटिव्स, जो पॉलिसी, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा रिपोर्ट करके उसका एक न्यूज़लेटर बन के 2, 4, 8 पेजेस का, तो वो इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो दैट ईच एंड एवरीबडी नोज what their colleagues are, their superiors or their subordinates are doing in the organization. न्यूज़लेटर में चीज़ें जा सकती हैं, HR इंफॉर्मेशन. वीडियो टेप्स बना के तो डिसमिनेट हो सकती हैं कि जी क्या हम कर रहे हैं, और इंटरनेट पोस्टिंग्स के थ्रू हो सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग HR इंफॉर्मेशन थ्रू HR पब्लिकेशंस एंड मीडिया. Well, managers should in this respect to communicate HR information through HR publication and media. Manager should make an honest effort to communicate information employee need to know. तो अब managers are required to know that what information they actually need. Employees की actual need क्या, कौन सी information उनको चाहिए. So manager should be providing that information in a sincere way. Here it should not be solely a public relations tool. जो आप information provide कर रहे हैं ना, public relations tool नहीं होना चाहिए. Rather, bad news as well as good news should be reported objectively in a readable style, understandable style में जानी चाहिए. ठीक है, ये ना हो कि आप सिंपल अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, जो बुरी चीज़ें वो ना बताएं. So what are different changes in policies, procedures, rules, जो भी टेक्नोलॉजी की चेंज, स्ट्रक्चर की चेंज है, टीम मैनेजमेंट है, जो भी है वो आप इन ट्रू सेंस कम्युनिकेट करें टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, सो दैट आपने ये पब्लिक रिलेशंस की तरह नहीं करना है उनके साथ कि आप अपना अच्छा इमेज दिखाएं और कंपनी का अच्छा इमेज दिखाएं और उसमें कहीं पे भी पता नहीं चले कंपनी एक्चुअल क्या कर रही है. सो यू आर टू बी sincere with your employees because you are depending upon your employees. If you are not actually taking into confidence these employees, then they won't be able to actually give the best output. वो आपकी productivity या quality of output उनकी कम रहेगी. तो आपने sincere effort करनी है in terms of communicating HR information. अच्छा, अब इसमें sincere effort के ये 2 different options हैं. एक न्यूज़लेटर में कंपनी ने क्या किया जी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शामिल कर दिया,
अब वो उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे, ये नाम के साथ नहीं आते कि अमजद ने ये सवाल पूछा, नहीं, एनोनिमस आएंगे, ठीक है ना, विदाउट नेम अपीयर होंगे, एंड मैनेजमेंट वुड बी एक्चुअली गिविंग द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन अ ट्रू वे। अच्छा, एक और चीज हो सकता है कि जी वीडियो और ऑडियो टेप्स टू एक्सप्लेन बेनिफिट्स प्रोग्राम, कम्युनिकेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा इनोवेटिव बेनिफिट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे हो सके, बाय द वे ऑफ डेवलपिंग वीडियो एंड ऑडियो टेप्स, और वो एम्प्लॉयज को दे दे सो दे कैन लिसन और वॉच दीज वीडियो और ऑडियो टेप्स एट देयर ओन डिस्क्रिप्शन। नाउ HR कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन ये कैसे हो सकती है, अनदर ऑप्शन इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना, ईमेल कर दें लोगों को जो भी चेंज हुई है, टेली कॉन्फ्रेंस कर लें, और मैसेज बोर्ड्स ऑन कंपनी वेबसाइट अब पेस्ट कर दें, अपनी कंपनी वेबसाइट पे कुछ चीज़ पेस्ट कर दें, सो ईच एंड एवरी पर्सन कैन एक्चुअली कैन नो दिस इंफॉर्मेशन। वेल, थ्रू ईमेल रिप्लाईज कैन बी रिटर्न एट वंस। तो अब कोई अगर लेटर मेमो जाता है तो वो फौरन उसका रिप्लाई नहीं आ सकता, लेकिन ईमेल का फौरन रिप्लाई आ सकता। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली अडॉप्टिंग this mode of communication, email. Then emails can bypass organization structure and channels, बहुत क्विक हैं, बहुत फास्ट हैं, सो जो उसमें टिपिकल रेड टेपिज्म, टिपिकल जो ब्यूरोक्रेसी है, टिपिकल उसमें डिले होते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी डायरेक्टली सेंड टू द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू लिंक किया जाता है डिफरेंट पीपल को एट डिफरेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड। Well, it can deliver same message at various audience at various location, to various audience at various locations. Message boards जो इंटरनेट पे अपने कंपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, message boards allow communication among management, employees and executives on issue of concern। तो कोई भी ऐसा इशू है, सेफ्टी का है, कोई कंपनसेशन का है, कोई बेनिफिट्स का इशू है, कोई जॉब डिज़ाइन का इशू है, वो पेस्ट कर दें अपनी वेबसाइट पर, सो ईच एंड एवरी वर्कर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मे नो दिस इशू, दे कैन गिव डायरेक्टली देयर इनपुट ऑन दैट इशू। सो दिस वाज सेकंड मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग HR इंफॉर्मेशन। थर्ड मोड है जी इसका सजेशन सिस्टम। सो इट्स अ फॉर्मल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एम्प्लॉय इनपुट। आपने एम्प्लॉय इनपुट लेनी है फॉर्मल वे में, एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब ये क्या है जी, अपवर्ड कम्युनिकेशन। सजेशन सिस्टम आपने देखे, सजेशन बॉक्स जगह जगह लगे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज अ फॉर्मल वे टू ऑब्टेन एम्प्लॉय इनपुट के वो हो डू दीज एम्प्लॉय एक्चुअली सीज अ वर्क, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कैसे पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए, वो अपने उसमें इनपुट दे सकते हैं, एंड इट्स बेसिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन। This suggestion system give opportunity to employees to suggest changes to improve the operations। के operations कैसे improve हो सकते हैं, different plans कैसे improve हो सकते हैं, different accidents कैसे avoid कर सकते हैं, loyalty कैसे enhance कर सकते हैं, customer service कैसे enhance कर सकते हैं, reproduction facility को कैसे improve कर सकते हैं, different चीज़ें वो देते हैं, cost कैसे curtail कर सकते हैं। Well, if you actually seek input from this way, and it seems that organization is going to apply that suggestions are improvement, so it may encourage loyalty and commitment among employees। जो मुझे पता चला मैंने जो suggestions दिया organization इसका regard किया और इसको implement किया, so I would be happy, and further I would be trying to give such suggestions in future as well। Well, employees are in good position to tell management, ठीक है ना, इस तरह वो आराम से अपनी मैनेजमेंट बता सकते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू इम्प्रूव द पॉलिसीज, हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसीजर्स। इन सर्टन केसेस फाइनेंशियल रिवार्ड्स फॉर सच सजेशन मे बी गिवन टू द एम्प्लॉयज इफ मैनेजमेंट सीज दैट by the application of this improvement, this feedback, this suggestion, organization has actually saved this much money in this avenue. So this cost saving or enhancement in increase in revenue may be distributed on a predetermined ratio to the person who has given the suggestion. अच्छा देखें जी, ये है टोयोटा जापान, that in a period of 7 years,
ठीक है. Toyota Japan received on average 2 million suggestions from its workforce. So we can see the enormous or extensive amount of feedback that they receive from their employees. So it shows that this organization is concerned about its employees. They actually seek feedback from employees. They apply this feedback, this suggestion from employees, and they value their employees. So if certain organizations are applying or going for such systems, then employees would be happy and employees would be actually staying with that organization. Next, these were three modes of communicating HR information, from top to bottom and from bottom to top. Next, we are to discuss this employee discipline. हमने कहा ये राइट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये HR पॉलिसीज़ हैं, हमने उसको बना दी, एम्प्लॉय हैंडबुक बना दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कम्युनिकेट कर दी इंफॉर्मेशन. नाउ इफ़ वी सी स्टिल दैट देयर इज सर्टन डिसिप्लिनरी इश्यूज, ठीक है, तो उसको हमने फिर कैसे मेंट करना है, कैसे करेक्ट करना है, ठीक है. वेल, एम्प्लॉय राइट्स ऑफन आर अ की इशू इन डिसिप्लिनरी केसेस. जहाँ भी डिसिप्लिनरी केसेस होते हैं उसमें कोई ना कोई अपना राइट देखे. आई हैव राइट फॉर प्राइवेसी, आई हैव राइट टू स्पीक, आई हैव राइट टू फ्रीडम. इस तरह डिफरेंट राइट्स. आई हैव राइट फॉर इक्वलिटी, आपने मुझे क्यों डिस्क्रिमिनेट किया, मेरा ये राइट था, ये राइट था, आप मेरी चेक क्यों कर रहे हैं, आपने मेरी ईमेल्स क्यों देखी, आप मेरे ये डॉक्यूमेंट क्यों देखा. ये सारी चीज़ें इस बेस पे डिसिप्लिन की चीज़ें अराइज होते हैं, इस बेस पे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय राइट्स. व्हाट इज डिसिप्लिन? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग दैट एनफोर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स. तो ये हम इस वे में, डिसिप्लिन के वे में अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन रूल्स आर टू बी एनफोर्स्ड. हम दिखाते हैं कि इस तरह ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को अप्लाई करना है हमने. वेल, दिस में बी यूज फॉर प्रॉब्लम एम्प्लॉयज. जो प्रॉब्लम एम्प्लॉयज हैं उनके लिए यूज होता है. और किस किस्म का प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये एब्सेंटीज्म हो सकती है, टार्डीनेस हो सकती है, लेजी है एम्प्लॉयज, प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसीज, और इनसबऑर्डिनेशन. इनसबऑर्डिनेशन मीन के दे डू नॉट एक्चुअली ओबे द ऑर्डर ऑफ द supervisor. So these are few of the instances that we can see that these are not required behavior. These are actually undesired behavior. कोई ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंटिज्म को टॉलरेट नहीं करते, टार्डीनेस को, प्रोडक्टिविटी डेफिशिएंसी को, इनसबऑर्डिनेशन को टॉलरेट नहीं करते. सो इफ दे सी सच प्रॉब्लम देन दे वुड बी गोइंग टू टेक सर्टेन डिसिप्लिनरी एक्शन. Well, if organizations fail to deal with the small number of problem employees, अब problem employees बहुत ज़्यादा वो नहीं होते, मेजॉरिटी में होते जी, माइनॉरिटी में होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. अच्छा, अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली डील नहीं करेगी, सो नेगेटिव इफेक्ट ऑन अदर एम्प्लॉयज आर ग्रुप में रिजल्ट. तो दूसरे कहते हैं कि जी सारी चीज़ें, सारे रूल्स पॉलिसी सब मेरे लिए हैं, वो ये करते हैं, वो उसने ये किया, उसे प्रमोशन भी मिला, उसे इंक्रीमेंट भी मिल गया, और हम इतना काम करते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता. सो एक्चुअली दे मे बी परसीव्ड एज नेगेटिवली. इफ ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, देन दिस एक्ट मे बी टेकन नेगेटिवली बाय द पीपल हु आर नॉट प्रॉब्लम वर्कर्स. ये जी टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी HR के और HR यूनिट की और मैनेजर्स की. HR unit designs HR procedures that consider employee rights. Procedures बनाएगा. It designs progressive discipline process if non-union. जो discipline process बनाएगा जहाँ पे unions नहीं होंगी. It trains managers on the use of discipline process. उनको train करेगा. HR unit assists managers with administration of discipline. के discipline actually employ कैसे करना है. These line managers are knowledgeable about organizational HR policies and rules. उनको पता होना चाहिए. They make disciplinary decisions. ये disciplinary decisions लेंगे. Then they would notify employees who violate policies and rules. उनको notify करेंगे disciplinary action के केस में. And they would discuss discipline follow up with employees. वो उसके साथ discuss भी करेंगे. Then what are appropriate approaches to discipline?
अब हमने डिसिप्लिन को ठीक कैसे करना है? वेल, डिसिप्लिन सिस्टम कैन बी व्यूड एज एन एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो डिसिप्लिन हम क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? हम वार्निंग्स, लेटर्स, ओरल वार्निंग्स ये क्यों देते हैं? जस्ट टू हैव एन एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि उनका बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। फ्रॉम वी आर टू एक्चुअली कन्वर्ट दीज प्रॉब्लम एम्प्लॉयज इनटू गुड एम्प्लॉयज। वेल, द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस डिसिप्लिन कैन बी सेल्फ डिसिप्लिन। अगर मैं खुद देखता हूँ क्या रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे ऊपर क्या अप्लाई होते हैं, क्या मेरे राइट्स हैं, सो आई मस्ट बी अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन क्या है जी? व्हेन मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड एट वर्क, दे कैन बी काउंटेड ऑन टू डू देयर जॉब्स इफेक्टिवली। तो वो आराम से अपना काम करते हैं, और मैनेजर्स क्या है, उनके सुपरवाइजर, दे एक्चुअली डिपेंड अपॉन दीज एम्प्लॉयज हु हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन फिर करना पड़ता है, एक्सटर्नल डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, ठीक है ना? हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करता या पर्सन हु इज लो एट सेल्फ डिसिप्लिन, देन एक्सटर्नल डिसिप्लिन वुड हेल्प देयर सेल्फ डिसिप्लिन। फिर कुछ एक्सटर्नल चीज आएगी। पहले तो ये कि जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद अपने आप को ठीक रखें, लेकिन अगर वो ठीक नहीं रखते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर को कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। इसे हम एक्सटर्नल डिसिप्लिन कहते हैं। Here we would be discussing two different approaches to discipline. इसमें एक है जी पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच, एक है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच। So positive discipline approach sees that violations are actions that usually can be constructively corrected without penalty. ये कहता है कि पेनल्टी ना दी जाए तब भी चीजें सही हो जाती हैं, जरूरत नहीं है किसी को पनिश करने की। Here managers focus on the fact finding and guidance to encourage desirable behaviors rather than using penalties to discourage undesired behavior. तो वो कहते हैं कि जी हमें encourage करना है desirable behavior को, पॉजिटिव अप्रोच लेनी है, ठीक है ना? कि अगर कोई टाइम पे आता है तो उसे हम कह रहे हैं शाबाश, आपने बहुत अच्छे के टाइम पे आया। जो लेट आया उसे ये ना कहें तुमने बहुत बुरा किया, लेट आए हो, ठीक है ना? ये पॉजिटिव बिहेवियर को एनकरेज करता है, नेगेटिव बिहेवियर्स को कहता है डिस्करेज ना करो, ठीक है? पेनल्टी ना लो उसके लिए ना, रिवार्ड दो पॉजिटिव बिहेवियर को, लेकिन एनकरेज करो पॉजिटिव बिहेवियर को, लेकिन पनिश ना करो, पेनल्टी ना लगाओ नेगेटिव बिहेवियर को। ये ना हो कि कोई लेट आया तो आप उसकी सैलरी काट लें, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। Here we are to discuss this positive discipline approach with the help of 4 steps. इसके पहले स्टेप में जी काउंसलिंग होती है। It heightens employee awareness of organizational rules and policies. ये इस सेशन में पहला सेशन जिस काउंसलिंग कहें, अगर कोई इनअप्रोप्रिएट चीज हो गई है, बिहेवियर को प्रॉब्लम है, तो उस एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर बॉस या HR डिपार्टमेंट वाला मैनेजर बिठा के समझाएगा, these are organizational rules and regulations and policies, you are to take care for these rules and regulations, and they would be actually making this person know that what disciplinary action may be taken against you. अगर आप दोबारा करोगे फिर क्या हो सकता है। पहले स्टेप में काउंसलिंग की, नेक्स्ट स्टेप में उसको रिटर्न मिलती है, अपना वार्निंग मिलती है, written warning, so written documentation. If employee fails to correct his behavior, then a second conference becomes necessary. आपकी जो verbal warning है वो नहीं चली ना, फिर आपने उसको written warning देनी है। This stage is documented in written form. अब ये लिख के होती है, and employee and supervisor develop written solutions to prevent such problems. इन प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट करना है उसके लिए रिटर्न सोल्यूशन, क्या आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है, उसका रिटर्न सोल्यूशन। एट थर्ड स्टेज वी हैव टू गिव फाइनल वार्निंग। सो इफ एम्प्लॉय डजंट फॉलो द रिटर्न सोल्यूशंस, अ फाइनल वार्निंग कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड। फिर फाइनल वार्निंग के अब अगर इस तरह हुआ तो आपको जी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, फाइनल वार्निंग आप उसे दे देंगे, दिस इज द लास्ट चांस। Here supervisor emphasizes the importance of correcting the inappropriate actions, कि जो आपके ये गलत बिहेवियर हैं, टाइम पे नहीं आते या आप काम नहीं करते या काम छोड़ के चले जाते हैं या रिपोर्ट आप डेडलाइन मीट करते हैं, तो आप इस तरह करेंगे तो अगेन एंड अगेन आपको इसमें टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दिस इज द लास्ट चांस। फाइनल वार्निंग दे दे तीसरे स्टेज में। और फोर्थ स्टेज है जी डिस्चार्ज। इफ एम्प्लॉय
फेल्स टू फॉलो द एक्शन प्लान, जो आपने पहले 3 स्टेजेस में रहा, अगर वो फेल हो जाता है, दैट वाज डेवलप एंड फर्दर प्रॉब्लम एग्जिस्ट, अभी भी प्रॉब्लम उसी तरह है, देन सुपरवाइजर डिस्चार्जेस द एम्प्लॉय, फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया, फायर कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है एम्प्लॉय को। वेल दिस अप्रोच नीड्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, अब इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, हाउ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। आपने ये सारी चीज़ें प्रॉपर करनी है, अगर विदाउट गोइंग थ्रू दीज प्रोसीजर, हर एक का प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, इस टाइम पे ये हुआ ओरल वार्निंग, फिर इस डेट पे रिटर्न हुआ, फिर ये हमारे फाइनल वार्निंग का नोटिस है, मेमो बना के रखें आप। और इन केस दैट दिस एम्प्लॉय हैज़ एक्चुअली एक्सेस्ड अ कोर्ट, और फिर उस कोर्ट ऑफ लॉ में आप वो सारे एविडेंस प्रोड्यूस करें, अदरवाइज योर कंपनी वुड बी फाइंड, और आपको उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, इट कंज्यूम्स वेरी एक्सपेंसिव सुपरवाइजरी टाइम, इससे सुपरवाइज मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं तो उनका टाइम बड़ा कीमती होता है, तो वो टाइम उसमें वेस्ट होता है। देन इज ये पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच थी। सेकंड है जी प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच। इट इज अगेन इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, each of which becomes progressively more stringent and are designed to change the employee's inappropriate behavior। इसी तरह उसमें डिफरेंट कह लें के स्टेजेस हैं कि आप देखें, फर्स्ट ऑफेंस पहला जो उसने कमिट किया क्राइम, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, इसकी कह लें प्रोग्रेसिवली इसकी जो एक्सटेंट है या इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होती जाती है, और दिस एक्चुअली एम्स टू करेक्ट एम्प्लॉयज इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पे अगर वो ये थर्ड ऑफेंस तक पहुंच जाता है, थर्ड ऑफेंस इन अ ईयर में लीड टू अ सस्पेंशन, उसके बाद सस्पेंशन हो जाती है। Here it sends a strong message to the employee that undesirable job behavior must change or termination is likely to follow। तो यहाँ पे आपने उसे ये बता देना है कि if this undesirable job behavior is continued, then the next option is your termination. So be prepared for that, that if you continue or if you again and again showing the same inappropriate behavior, then organization would be simply firing you. Then this approach provides opportunity to correct deficiency। ये देखें opportunities दी हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो उससे स्पेयर किया है, और ये फिर क्या एक और उसका ऑफेंस होगा, नाउ दिस पर्सन इज टर्मिनेटेड। वेल दिस अप्रोच ensures that both the nature and seriousness of the problem are clearly communicated to the employee। उसकी नेचर और सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम क्लियरली उसे कम्युनिकेट हो रहा है, तो ये शुड ईच एंड एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, ठीक है ना। तो अब पहले जो ऑफेंस है उस वर्बल कॉशन देंगे, फिर रिटन रिप्रिमेंड देंगे, फिर सस्पेंशन हो सकता है थर्ड पे, और फोर्थ पे डिस्चार्ज हो सकता है। सो अगेन इट्स अ स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ विच बिकम्स ईच स्टेप्स, ठीक है, ऑफ विच ईच स्टेप बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्ट्रिंजेंट एंड आर डिजाइन टू चेंज द एम्प्लॉयज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप फर्स्ट ऑफेंस ऑब्जर्व करें तो वर्बल काशन दे दें कि उसने प्रॉपर काम नहीं किया, ठीक है ना, एक्सीडेंट उसने किया है कोई और चीज़ के लिए। सेकंड ऑफेंस किया तो उसे रिटर्न वार्निंग दे दें, थर्ड ऑफेंस किया तो सस्पेंशन कर दें, फोर्थ ऑफेंस पे सिंपली यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज। बट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस अप्रोच शुड बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट यू may avoid lawsuits. Next we are to discuss still we have different disciplinary actions। हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव अप्रोच टू डिसिप्लिन, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाए। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजंस व्हाई डिसिप्लिन माइट नॉट बी यूज्ड, क्यों नहीं करते। Well, there are certain organization culture regarding discipline। Organization culture ही ऐसा है कि वो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी को निकालें। So here organizational norms, जो organization के norms हैं, ठीक है ना, organization norm is to avoid penalizing and even dismissal of problem। वो कहता है कि जो प्रॉब्लम करते इसे आप ना पनिश करें, ना इनको निकालें, बस इसको चलने दें, ठीक है ना। वो इसके साथ
लेट इट गो वाली पॉलिसी उसने की हुई है कि जिस चीज़ें चलने दें, चीज़ें बस रन करने दें, इसमें प्रॉब्लम ना लेके आए. Then if you see that lack of support by higher management, कि if I take this sort of action कि मैंने किसी को सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया और टॉप मैनेजमेंट क्या करेगी, उसे रीइंस्टेट कर दे, बहाल कर देगी. सो इफ यू सी सच टाइप ऑफ सपोर्ट बाय टॉप मैनेजमेंट कि वो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करेगी, सो मैनेजर्स वुड बी अवॉइडिंग सच डिसिप्लिनरी एक्शंस. देन एक गिल्ट का एलिमेंट होता है कि आई सी दैट the time I was an employee at that level, मैं भी जब इस तरह वर्कर था या कंप्यूटर ऑपरेटर था या रिसेप्शनिस्ट था, तो मैं भी यही चीज़ें करता था. सो because I was doing the same things at the time and I was not punished, so why I should punish this employee. ठीक है ना. तो अपनी चीज़ देख के कि मैं भी तो इसी तरह की चीज़ें कर गया हूँ, तो लोग पनिश नहीं करते. Then loss of friendship, कि if that person is a friend, then I may see that if I take any disciplinary action, then I may lose this friend. So because of the fear of this loss of friendship, then I would not be taking any disciplinary action. Then time loss, वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, सारे प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे, ये होगा, और इससे बेहतर है कि करें ही ना, ये चीज़ ही ना करें. फिर fear of lawsuits. So if I take certain actions, extreme action, discharge या suspension की action, so here employees may be actually going to court and would be actually filing a lawsuit against your organization. So you are to actually appear in the court of law before the judge. So in order to avoid all of these such consequences, you would be simply foregoing to take any disciplinary. तो आप disciplinary action नहीं करते. So these were few of the reasons why disciplinary action are not taken by the management. Then ये एक हॉट स्टोव रूल है कि जो गुड डिसिप्लिन है ना, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे हम शो कर सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस है. गुड डिसिप्लिन इज जस्ट लाइक अ हॉट स्टोव. इट प्रोवाइड्स अ वार्निंग, फील्स हॉट. ये पहले पता चल रहा है कि इसमें से स्टीम निकल रही है, इट इज़ वार्म. ठीक है ना, आपको पता चले ये हॉट है, आपको ये चीज़ें उसमें से नज़र आ रही हैं आपको. It provides a warning, feels hot. It is consistent. It burns every time. तो जब भी आप commit करेंगे तो आपको यही reaction मिलेगा. It is immediate, burns now. So जैसे आप करेंगे फौरन आपको मिलता है reaction, तो उसका effect ज़्यादा होता है. It is impersonal, burns all alike. सबको same reaction देता है, तो हम कहते हैं it is impersonal. तो ये हम principle, good discipline का जो rule है, उसको हम किस तरह शो कर सकते हैं, बाय एन एनालॉजी ऑफ हॉट स्टोव रूल. कि जैसे स्टोव है ना, वो क्या है जी, प्रोवाइड्स वार्निंग, इट इज़ कंसिस्टेंट, इट इज़ इमीडिएट एंड इट इज़ इम्पर्सनल. तो इस तरह एक एनालॉजी के थ्रू हम इस गुड डिसिप्लिन को शो कर सकते हैं. वेल, हाउ वी कैन गो फॉर इफेक्टिव डिसिप्लिन. इफेक्टिव डिसिप्लिन कैसे हम लेके आएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में. इट शुड बी एम्ड एट द बिहेवियर नॉट द एम्प्लॉय. तो जैसे जो पुलिस का भी मोटो है कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं, तो सेम इज़ अ केस हियर कि जी आपने किस चीज़ को करेक्ट करना है, बिहेवियर को करना है, एम्प्लॉय को नहीं करना. सो फोकस शुड बी एम्प्लॉय, फोकस शुड बी बिहेवियर नॉट एम्प्लॉय. डिसिप्लिन कैन बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस. सो इसको डिसिप्लिन हमेशा ये नहीं कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो इट मे रिजल्ट इन सर्टन नेगेटिव consequences. सो डिसिप्लिन शुड बी एक्चुअली meant for having positive improvement in performance. तो हम क्यों करते हैं डिसिप्लिन, लोगों को क्यों हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं, उनके से एक्शन क्यों लेते हैं, जस्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. उसका नेगेटिव पर्पस नहीं होना चाहिए, उसका पॉजिटिव उसमें सारी होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए कि वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज. If the manager tolerates unacceptable behavior, the group may resent the unfairness. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. So you have to take action. You have to actually start the disciplinary action wherever you see any deviation in order to maintain effective discipline. Well, training supervisors and managers on when and how discipline is crucial. आपने उनको ट्रेन देना है कि जी कब आपने डिसिप्लिन स्टार्ट करना है और कैसे करना है.
Training managers on counseling and communication skills may enable them to deal with employee performance problems. तो जो उनके performance problems हैं उनको improve करने के लिए पहले ही आप precaution measure ले लें, preventive measure ले लें कि उनके साथ counseling करें, और counseling करने के लिए आपके communication skills should be very strong. Final, we are to discuss that how to go for this discharge, that is a final disciplinary step. ठीक है, डिस्चार्ज को कैसे हैंडल करना है. हेयर प्रोवाइड डिस्चार्ज वार्निंग एट लास्ट डिसिप्लिनरी स्टेप बिफोर टर्मिनेशन. तो आपकी डिस्चार्ज वार्निंग लाजमी जानी चाहिए, ये ना हो विदाउट गिविंग वार्निंग आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं. देन यू हैव टू प्रोवाइड द एम्प्लॉय विद रिटन नोटिस ऑफ द डिस्चार्ज दैट क्लियरली स्टेट्स द रीजंस फॉर द डिस्चार्ज डिसीजन. ठीक है, आपका जो नोटिस जाएगा उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए कि आपने ये किया, ये किया, ये किया. ठीक है ना, वहां पे कोई भी आप शुगर कोटिंग नहीं करें, डायरेक्ट क्लियर टर्म्स में लिखेंगे व्हाट आर द ऑफेंस एट व्हाट टाइम एंड हाउ यू आर बिहेविंग. यू हैव टू गिव क्लियर इंस्टांसेस, क्लियर हो, उसमें कई शुगर कोटिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर टू डिफेंड इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. देन हैव एन HR रिप्रेजेंटेटिव अटेंड द टर्मिनेशन मीटिंग एज अ विटनेस. उसको मीटिंग में एक HR का रिप्रेजेंटेटिव बिठाएं. एंड फाइनली यू हैव टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय ऑफ HR बेनिफिट्स इशू. अब उसके आप जब उसे टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसके सर्टन बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, तो आप उसको उस टाइम पे बेनिफिट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो आप उसको बताएं. Well, here we have completed with lecture 17. This is a summary. Here we have discussed rights and responsibilities issue. We have discussed certain legislation that are present in terms of rights. Then we have discussed HR policies, procedures and rules. Then we have discussed what are employee handbooks, how to use, how to develop, then how to communicate HR information. Then we have discussed employee discipline, and we have also discussed what are different approaches to discipline. So here are the books that I have used for this lecture. The main lecture is based on human resource management, Robert Mathis and John Jackson, and some of the rules have been taken from this labor and employment law, A Profile in Pakistan by Iftikhar Ahmed. Well, this was all about lecture 17. Thank you very much.